Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve Indian Economic Services General Economics Paper 1 previous year question. Okay, so this is our question. जहाँ पे हमें define करना है consumer surplus and producer surplus, and you have been given demand function and supply function. So under the perfect competition. Okay, so you have to find consumer surplus and producer surplus under perfect competition. Okay, solve करते हैं इसको. First we need to define what is consumer surplus and producer surplus. So first, consumer surplus. कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पर मैंने इन डिटेल एक वीडियो 2-3 वीडियो बना के रखे हैं, आप लोग देख सकते हो उसको. सो कंज्यूमर सरप्लस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस between consumers maximum willingness to pay and what he actually pay, that is equilibrium price, P star, to consume a commodity, to consume that commodity. So it is the difference between maximum willingness to pay and the equilibrium price. Okay, so आप इसे इस तरीके से लिखते हो, consumer surplus is your maximum willingness to pay, इसे हम P से डिनोट करते हैं, minus equilibrium price, P star. Okay, this difference will give you consumer surplus. Second, producer surplus. Producer surplus represents the difference between producer's minimum willingness to charge or sell for their commodity and equilibrium price, what they actually end up selling the price. Okay, the equilibrium price P star, कि वो मिनिमम कितना चार्ज करना चाहते थे उस कमोडिटी को सेल करने के लिए और उन्होंने एक्चुअली कितने में सेल किया, ये डिफरेंस बताता है प्रोड्यूसर सरप्लस. सो मिनिमम विलिंगनेस टू सेल और मिनिमम विलिंगनेस टू चार्ज माइनस इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस, तो अगर आप इसको पी से डिनोट करो तो माइनस इसको पी स्टार. ओके, सो योर अब इस तरीके से देखो, your PS, that is the producer surplus, is equals to the difference of minimum willingness to charge minus the equilibrium price. Okay, ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, जैसे नॉर्मली मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ आपको. ग्राफिकली आप इसे लिख सकते हो, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो डिमांड पर and above the equilibrium price line, star line. Okay, and producer surplus area above the supply curve, and
below the price line, below the equilibrium price, P star line. ओके, ग्राफिकली इसकी ये डेफिनेशन है। एंड मैं एक इन जनरल को एक ग्राफ लेके आपको बता भी देती हूँ। लेट्स से आपका ये डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। ओके, ये आपका पी स्टार लाइन है, ये क्यू स्टार लाइन है, ये आपका पी स्टार। तो एरिया अबव दिस पी स्टार लाइन एंड बिलो दिस डिमांड कर्व, this particular triangle is your consumer surplus, and area below this P star line and above this supply curve, ये black line, this is your supply curve, this is your demand curve, this area represents the producer surplus. Okay, graphically आप इस तरीके से दिखा सकते हो। इसका ये मीनिंग है, area below demand curve and above the equilibrium price represents your consumer surplus, and area above supply curve and below the equilibrium price represents your producer surplus। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अभी हमारे पास क्या गिवन है, so you have been given demand function is P is equals to 113 minus Q square. ओके, एंड आपका सप्लाई फंक्शन क्या गिवन है, P is equals to Q plus 1 square. ओके, ये आपका सप्लाई फंक्शन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, so under perfect competition at equilibrium your demand is equals to supply, right? So your PD, this is your this demand function is equals to PS, right? तो आप इसे लिखोगे एक साथ 113 minus Q square which is equals to Q plus 1 whole square, right? बिकॉज आपके इक्विलिब्रियम पे डिमांड इक्वल होती है सप्लाई की, तो आप दोनों इक्वेट कर दोगे। P इज इक्वल्स टू 113 माइनस Q स्क्वायर एंड P इज इक्वल टू Q प्लस 1 होल स्क्वायर है। ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है। इक्वेट करोगे आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आएगी। ये क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इस तरीके से, A प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसे एक्सपेंड करोगे तो विल गेट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2AB। आपका A क्या है यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू Q एंड आपका B इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, आप इसे एक्सपेंड करके लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। लेट मी यूज डिफरेंट कलर नाउ। 113 माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2Q। ओके, आप इसे रीअरेंज करोगे सो यू विल गेट ये Q स्क्वायर आप उधर 113 ये माइनस 1 इज इक्वल्स टू इधर जाएगा तो Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2Q। So you will get 1112 is equals to 2Q square plus 2Q. Okay, अब आपसे एक साइड लिखोगे पूरा टर्म क्वाड्रेटिक फंक्शन के टर्म्स में 2Q minus 112 is equals to 0. ओके, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से। ओके, जिससे फैक्टर आउट कर लोगे, बाहर कॉमन ले लोगे, देन यू लेफ्ट विद Q स्क्वायर प्लस Q minus 56, राइट, इक्वल्स टू 0। आप 56 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो यू विल गेट 112। ये 2 आपने फैक्टर आउट कर लिया, बाहर ले लिया कॉमन। ओके, अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। एंड ये 2 है, आप इस साइड भेजोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो अब आप 2 हटा सकते हो यहाँ से। ओके, तो यू कैन राइट Q स्क्वायर प्लस Q माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें Q की टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है, बीच वाला है Q, तो नॉर्मली क्या कहते हैं A इंटू बी मस्ट इक्वल्स टू दिस। यहाँ 1 है, यहाँ 56 है, तो ये A है, ये B है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू मस्ट गेट 56। 56 इंटू 1 56। ओके, एंड योर A प्लस बी मस्ट इक्वल्स टू 1। Q की तरफ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो जब आपके फैक्टर्स लेते हो लाइक 56 के अगर आप फैक्टर्स लो तो क्या आएगा,
2 7 जा 14, 7 1 जा 7. So you have these factors 7. आप ये तीनों मल्टीप्लाई करोगे, you will get 2 into 2 into 2 will is equals to 8 and 7. आपके पास दो टर्म आए 8 and 7. 8 into 7 is equal to 56 and 8 minus 7 is equal to 1. तो ये हमारे इस फॉर्म में फैक्टर्स आ गए, राइट? अभी हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे. लेट मी यूज डिफरेंट कलर. सो यू हैव q स्क्वायर प्लस q. तो यू कैन राइट 8q माइनस 7q. यहाँ पे क्या है 1q है. 8q में से आप 7q माइनस करोगे, यू लेफ्ट विद 1q, राइट? माइनस 56. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे कोई भी सोर्स देख सकते हो, मैथमेटिकल कोई भी वीडियो देख सकते हो इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, एंड आपको आ जाएगा. अब आप इसके फैक्टर्स लेते हो तो ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? q, राइट? आपने q कॉमन लिया, यू लेफ्ट विथ q प्लस 8. इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? आप -7 कॉमन ले सकते हो, -7, राइट? तो यू लेफ्ट विथ q प्लस 8, right? Because 8 7 जा 56, okay, is equals to 0. अभी आपके पास दो टर्म्स है, q minus 7 is equals to 0 and q plus 8 is equals to 0. तो आप इसे दूसरे साइड भेजोगे, you will get q is equal to 7 and इस केस में you will get q is equal to -8. तो इसमें से आपके पास q स्टार ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की दो वैल्यूज आ गई, एक 7 एक -8. तो आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रखोगे, आप क्वांटिटी कितना कंज्यूम करोगे? पॉजिटिव अमाउंट में कंज्यूम करोगे, नेगेटिव में तो कंज्यूम करोगे नहीं. सो योर क्यू स्टार विल बी 7. ये है आपकी ऑप्टिमम क्वांटिटीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो आपको क्यू स्टार का वैल्यू आ गया. अभी आपको पी स्टार ने इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए, तो आप चाहे डिमांड फंक्शन में क्यू को पुट कर दो या सप्लाई फंक्शन में पुट कर दो, आपको आंसर सेम मिलेगा. तो लेट्स से हम लोग सप्लाई फंक्शन में पुट करते हैं. क्यू प्लस 1 स्क्वायर, हमारा क्यू क्या है 7 प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हुआ 8 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर क्या होता है 64. ये आपका पी. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू योर डिमांड प्राइस एंड सप्लाई प्राइस, राइट? तो ये आपका आ गया पी स्टार. हमारे पास पी स्टार क्यू स्टार दोनों आ गया. हम लोग इधर लिखते हैं इसको पी स्टार एंड क्यू स्टार. इज 64 into 7. ओके, अब ग्राफिकली प्लॉट करते हैं गिवन फंक्शंस को. तो दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यू विल गेट पैराबोलिक कर्व. ओके, ओके, लेट मी डिफरेंट. अब पहले ये आपका डिमांड फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है 113 माइनस क्यू स्क्वायर. ओके, तो आप क्यू 0 रखोगे, क्यू इज इक्वल टू 0 करोगे तो पी किसके इक्वल आएगा 113. ये क्या बताता है? आपकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे. तो ये है आपका इधर क्यू, इधर है आपका प्राइस. आपने क्यू 0 किया, आपको कहाँ पे मिलेगा ये सब? ये है आपका 113. ओके, एक पॉइंट आपको मिलेगा. ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको यू शेप कर्व मिलेगा. बट यहाँ क्यू क्या है माइनस में है, क्यू के आगे क्यू स्क्वायर के आगे क्या है माइनस, तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा. तो इस केस में जब आप प्लॉट करोगे तो आपको इस तरीके से फंक्शन मिलेगा. ओके, दिस यू शेप कर्व हम लोग ऐसे यूज करके बता रहे हैं. तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट पे. तो ये आपका P 113. ओके, एंड जब आप P इज इक्वल टू 0 रखोगे, देन यू विल गेट Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113 एंड अंडर रूट प्लस -1. तो अंडर रूट लोगे, आपको 10.63 समथिंग इस तरीके का कुछ वैल्यू आएगा इस पॉइंट पे. जब आपका प्राइस 0 है तो आपकी Q की वैल्यू क्या होगी 10.67 और 63 समथिंग इस तरीके से आएगा यहाँ पे. ओके, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में तो हमें इतना ग्राफ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नेगेटिव में. बट ये शो करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यू विल गेट यू शेप कर्व. ओके, अभी सप्लाई फंक्शन के लिए देखते हैं. तो आपका सप्लाई फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है P इज इक्वल्स टू
क्यू प्लस वन स्क्वायर। तो ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें भी आप यू सेव कर्व देखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू पॉजिटिव है, मतलब इस पॉइंट के जहाँ पे भी ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, इधर नॉन नेगेटिव, इधर इस वाले क्वाड्रेंट में आपको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी यू सेप ही बनेगा। ओके, सो यू विल गेट कर्व लाइक दिस। आई एम अज्यूमिंग कि यू नो हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, क्योंकि अल्टी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मेन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिराइव करते हैं। सो दिस इज योर सप्लाई कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है। इस पॉइंट पे आपका वन है कि जब आप Q इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, देन यू विल गेट P इज इक्वल्स टू 1। तो इस पॉइंट पे Q0 है, आपका P1 है, ये आपकी मिनिमम विलिंगनेस टू पे, इसको आप P डबल डैश से दिखाते हो, ये आपका बताता है मिनिमम विलिंगनेस टू पे। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या देगा, P स्टार एंड Q स्टार, ये पॉइंट। तो ये आपका P स्टार, ये आपका Q स्टार। ओके, आपका P स्टार क्या है, 64, Q स्टार क्या है, 7। सो अभी जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था कंज्यूमर सरप्लस को, एरिया अबव द प्राइस लाइन below this demand curve is your consumer surplus. Okay, and area below this price line above this supply curve is your producer surplus. Okay, अब इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि पहले कंज्यूमर सरप्लस के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा कर्व, इतना एरिया निकालना है, इतना। ओके, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। आपको कितना, यहाँ से लेके इतना एरिया बिलो द डिमांड कर्व अप टू Q स्टार, इतना, इतने का वैल्यू चाहिए। ओके, देन आप क्या करोगे फिर उसमें से ये जो ये रेक्टेंगल है इतना, सॉरी, ये जो रेक्टेंगल है आप उसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओके, देन यू विल गेट योर ट्राइंगल दिस फॉर्म, कंज्यूमर सरप्लस। सॉल्व करते हैं। सो इस सिनेरियो में आपका कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। कंज्यूमर सरप्लस आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम Q0 टू Q स्टार डिमांड फंक्शन को। ओके, विद रिस्पेक्ट टू Q इंटीग्रेट करना माइनस P स्टार Q स्टार। ओके, ये आपका जनरल फॉर्मूला बनेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो आपके लिमिट्स क्या है, 0, Q स्टार क्या है, 7, आपका डिमांड फंक्शन क्या है, 113 माइनस Q स्क्वायर। आप इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, माइनस P कितना है, 64, Q स्टार क्या है, 7। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब रहता है आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, और जो भी पावर रहे उस पावर को एक्सपोनेंट डिवाइड में रखने देना होता है। ठीक है, 113 Q से मल्टीप्लाई करोगे Q का पावर 1 है, आप 1 डिवाइड करोगे 1 से। ओके, लेकिन 1 को आप लिखते नहीं हो, तो आप ऐसे ही रख दोगे। ओके, नाउ Q स्क्वायर में आप Q को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट Q3। जो भी पावर होता है उसको आप डिनोमिनेटर में भी लिखते हो इस तरीके से, तो आपका आ जाएगा Q3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, आपकी लिमिट्स क्या है, 0 टू 7, माइनस 64 इंटू 7, यू विल गेट 448। आपके पास Q की, आपको यहाँ पे क्या, एक बार Q को 7 रखना है, एक बार Q इज इक्वल टू 0 रखना है, लेकिन आप Q इज इक्वल टू 0 रखोगे तो वो उल्टम 0 ही हो जाएगा, राइट। जैसे इस तरीके से 113, एक बार Q को जगह पे आप 7 रखो, माइनस एक बार Q की जगह पे आप 0 रखो। ओके, सिमिलरली इसको उठा दो, यहाँ पे Q क्या है, 7,
3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 448। तो अब ये तो जीरो वाला टर्म तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सो यू विल लेफ्ट आउट विद 113 इंटू 7 माइनस 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस 448, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 791 माइनस इसको 7 का क्यूब होता है 343 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 448। ओके, सो 791, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो 343 divided by 3 plus 448. Now let me use calculator to solve it. So 791 equals to 1143 plus 448. 791 minus 56233. So you will get 228.67. Your consumer surplus is equals to 228.67. Okay, हमारे कंज्यूमर सरप्लस का एक्सप्रेशन आ गया. Now we will solve producer surplus. Okay. I'm using different color now. So producer surplus क्या होता है? Producer surplus होता है P star Q star minus limits from 0 to Q star differentiation this integration of supply function with respect to Q. Okay. ये आपका जनरल फॉर्मूला है फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस. हमारा P स्टार है 64, Q स्टार है 7 माइनस Q स्टार क्या है 7. सप्लाई फंक्शन क्या है Q प्लस 1 होल स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q. 64 इंटू 7 ये 448 माइनस लिमिट 0 टू 7. इसको एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2Q. इसको होल टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q. So you can write 448 माइनस Q से मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर में यू विल गेट Q3. जो भी पावर है उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं. ओके, प्लस 1 को Q में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट Q. Q का पावर 1 है, सो 1 से आप डिवाइड करोगे तो 1 लिखते नहीं हो. ओके, ये इजी वे है याद रखने का. ओके, अब 2Q में Q से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर. पावर क्या है 2, 2 से डिवाइड कर दो आप नीचे. ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यू लेफ्ट विद ओनली Q स्क्वायर. ओके, लिमिट्स अगेन 7 और 0. 448 माइनस 3 प्लस Q प्लस 2 से 2 कैंसिल Q स्क्वायर. लिमिट 7 0. ये Q की दो वैल्यू हैं 0 और 7. आपको एक बार Q की जगह पे 7 पुट करना है, एक बार Q की जगह पे 0 पुट करना है. ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो अब 0 पुट करोगे तो पूरा 0 ही आएगा. तो आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक दिस Q की जगह पे आपको 7 Q डिवाइडेड बाई Q माइनस 0 का Q डिवाइडेड बाई 3. ओके, A प्लस 7 माइनस 0, तो 0 का 0 ही रहेगा. इस तरीके से 7 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. तो ये तो 0 वाले टर्म तो 0 ही रहेंगे. यू कैन राइट इट लाइक दिस 448 माइनस 7 का क्यूब होता है 343 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49. ओके, 49. तो आप ये तीनों टर्म को ऐड करोगे. सो
Let me add it, and what you will get. So you will get 448 minus 170.33. Okay. And after subtracting this term, you will get 277.67. So this is your producer surplus. आपका producer surplus कितना है? 277.66. Okay. So I hope आप लोगों को clear हुआ होगा ये. We are done with this question. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.